Hello everybody, this is Dr. Nur Badsha from University of Engineering and Technology, Peshawar. I welcome you to my channel. In today's lecture, I'll be talking about solution of non-homogeneous second order ordinary differential equations, and the method in this case I'll be talking about, that's a method of undetermined coefficient. Okay, so obviously this method is used for solution of non-homogeneous equation, and this can be used for solution of ODE with constant coefficients. Okay, so a standard equation of second order with constant coefficients, that is usually expressed in the form y double dash plus ay dash plus by is equal to r of x, right, where r of x is obviously the source term for the system. And based on the value of r of x, we usually decide whether the given equation is homogeneous or non-homogeneous. So in last video, I talked about if r of x is equal to 0, the equation becomes homogeneous, and we solved that. We discussed a method for solution of such type of equation. Okay. Now in this lecture, I'll be talking about those differential equations where r of x is not equal to 0. Okay, so if r of x is not equal to 0, this become a non-homogeneous differential equation, and solution of this equation is usually can be expressed in the form y is equal to yc plus yp. इसका जो solution होता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का, वो usually it consists of two parts, that is yc and yp. You see, yc is the solution of the corresponding homogeneous equation y double dash plus ay dash plus by is equal to 0, and where yp is the particular integral which is the solution of corresponding non-homogeneous equation. तो जो method of undetermined coefficient है, that is basically used for finding yp, not yc. Yc would be found by using the method of characteristic equation. Okay, and this principle, when we write y is equal to yc plus yp, that is a superposition principle. In this case, yc is a solution of a homogeneous equation, yp is a solution of a non-homogeneous equation, and their simple combination will be solution of a general solution of the given differential equation. Okay, so these are some basic YPs based on the nature of right hand side, R of x or G of x or f of x. So you see, if f of x is a constant function, okay, if the right hand side of a differential equation is a constant function, in that case we usually take yp as simply a, where a is a constant whose value is to be determined, that's the undetermined coefficient. If it's a linear polynomial, in that case we will be taking ax plus b, corresponding linear equation. अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान में रख लें कि ज़रूरी नहीं है कि हम 5x प्लस 7 की बात करें, इसमें 5x और 7 दोनों होंगे, ठीक है। इसमें हम ये भी हो सकता है कि we might be having only 5x. Okay, so if we are having an equation like a right hand side like 5x, उस केस में भी हम ax plus b ही लेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर 5x आ गया तो आपने यहाँ पर ax लिया. नहीं, अगर 5x है तो फिर आपने क्या करना है, आपने ax plus b लेना है. अगर 3x plus 10 है तब भी आपने लेना ax plus b. Whatever these coefficients are, doesn't matter, you'll be taking ax plus b. If we have a quadratic right hand side as a quadratic polynomial, 3x square minus 2, अब देखें यहाँ पर x missing है, x नहीं है, उसका coefficient 0 है, but we're still taking ax square plus bx plus 3, right? Even if it is only 3x square, you'll be taking the same thing, ax square plus bx plus c. If it was 3x square plus 2x, you'll be taking same thing, and so on. ओके, मतलब यहाँ पे कोई भी हो, सिर्फ उसकी मैक्सिमम जो पावर है x के वो 2 हो, तो आपने इस एक्सप्रेशन को एज ए होल यूज करना होता है. And if you have polynomial of degree 3, okay, so you'll be taking again the same thing, ax cube plus bx square plus cx plus e. अगर डिग्री 4 की polynomial हमारे पास है तो यहाँ पर ax4 bx cube and so on, whatever बाकी जो है उनमें से कोई हो या ना हो, आपने फिर भी ये पूरा का पूरा लेना होता है. अच्छा,
इनके अलावा जो बाकी पावर्स हैं एक्स के, लाइक फ्रैक्शनल पावर्स हैं, ठीक है, या नेगेटिव पावर्स हैं, तो उसके लिए ये मेथड जो है ये एप्लीकेबल नहीं है. Okay, like if you have under root x, so can we apply this method? Can we consider yp is like that? So the answer is no. We can apply that for this type of function. Okay, algebraic function में इस तरह होगा. Whereas in case of trigonometric functions, हमारे पास क्या होता है? We can have this is only applicable to sine function and cos functions. We cannot apply that for secant function, tangent function, and so on. We can have any multiple of angle, or we can have any multiple of sine or cos. Okay, we can apply that for it. So if you are having sine 4x or cos 4x, or maybe both of them, okay, we can have like y is right hand side that is equal to, if right hand side is r of x, that is defined as let's suppose that is equal to 2 sine x 2x plus 3 cos 2x. ओके, तो इन दोनों केसेस में चाहे सिर्फ साइन 4x है, सॉरी आई शुड हैव टेकन दिस 4, डजंट मैटर. तो साइन 4x हो, cos 4x हो, या इसकी कोई भी कम्बिनेशन हो दोनों की, लेकिन यहाँ पर एंगल का सेम होना ज़रूरी है, ये ज़रा ध्यान में रख लें. तो इन तीनों केसेस में हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो यही आएगा, a cos 4x प्लस b sin 4x, a cos 4x प्लस b sin 4x. हाँ, अगर ये दो फंक्शन डिफरेंट एंगल मल्टीपल के साथ है, यानी अगर आपको r of x यूँ दिया हुआ है, r of x इज इक्वल टू साइन x और प्लस cos 2x है. अब देखिए यहाँ पर 1 मल्टीपल हो रहा है एंगल के साथ, यहाँ पे 2 मल्टीपल है, तो यहाँ पर फिर हम ऐसा नहीं करेंगे. यहाँ पे इसके लिए अलग से ये दोनों यूज़ होंगे और इसके लिए अलग से होंगे. यानी इन दिस केस योर वाई पी विल बी व्हाट, दैट विल बी a sin x प्लस b cos x, और a cos x प्लस b sin x डजंट मैटर, प्लस अगेन a sin 2x प्लस b cos 2x. ओके, तो इनमें से फिर आप कोई भी ले सकते हो, दोनों के अलग अलग लेना पड़ेगा. अगर 3 है तो तीनों के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा. Okay, and the next one is if we have exponential function like this one, we have e power 5x. Okay, so if you have e power 5x, in that case we'll be taking a e power 5x. We can have a combination of these functions as well in terms of product or in terms of sum as well. Like in this case we have a product of a linear polynomial with we have a linear polynomial with exponential. We can have a linear polynomial with trigonometric function as well, right? We can have exponential function and trigonometric function as well. लेकिन जैसे हमारा है कि ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ साइन और कॉस के लिए यूज़ होता है. वी कैन नॉट गो फॉर अदर फंक्शंस टेंजेंट एक्स, लाइक ई पावर एक्स टेंजेंट एक्स होगा तो फिर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता. तो ये मेथड एप्लीकेबल है ओनली फॉर दोज इक्वेशंस विच आर लीनियर, राइट, एंड विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. अगर कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स हैं तो फिर भी ये यूज़ हम नहीं कर सकते इसको. ओके, एंड इफ वी आर हैविंग अदर देन दीज राइट हैंड साइड्स, तो भी ये नहीं होता. इनकी कम्बिनेशन भी हो सकती है, लाइक यू कैन हैव अ फंक्शन लाइक r of x that is equal to, okay, if you have r of x that is equal to e power x plus x square minus 3 plus maybe sin 2x. ठीक है, तो इन सब की हम सम भी हम ले सकते हैं. तो इसी दैट यहाँ पर ये इसका अलग से होगा. It will be taken as yp will be taken as a e power x plus this will become bx square plus cx plus d, whereas the next one will become what, that will be written as d हो गया है. तो next is e sin 2x plus f cos 2x. अच्छा, आप इनको अलग अलग से भी कर सकते हैं, लाइक ई पावर एक्स के लिए अलग करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के लिए अलग करें, साइन 2x के लिए अलग करें, और फिर एंड में जो सोल्यूशन हमारे पास आता है, वी यूजुअली टेक दिस इज वाई पी 1, वी टेक दिस वन एज वाई पी 2, वी टेक दिस वन एज वाई पी 3, और फिर जो लास्ट में वाई पी आता है वो इन तीनों का सम होता है, वाई पी 1 प्लस वाई पी 2 प्लस वाई पी 3.
इट विल सम अप ऑल दीज थ्री फंक्शंस देन, राइट? यू कैन डू इन दैट वे एज वेल। और इन तीनों को आप एक साथ में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ए बी सी डी ई एफ इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। ओके, तो ये जो टेबल है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप यू कैन हैव एनी फंक्शन ऑन द राइट साइड ऑफ दिस। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नेक्स्ट इस पे, and that is in steps. The first step is what you will be simply considering corresponding homogeneous equation to find yc. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, लीनियर कोफिशिएंट्स के लीनियर हो, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो और होमोजीनियस, आपने उसके लिए कंसिडर करना होता है, ठीक है? फिर से एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा, which will be obviously like m square plus am plus b is equal to 0, जिससे आप रूट्स फाइंड करेंगे और वहाँ से आपके पास yc आ जाएगा। yc that would be y is equal to c1 y1 plus c2 y2, where y1 y2 will be found by using those roots of the characteristic equation. Okay, and once you have done that, then simply observe the right hand side r of x, okay, and the corresponding yp as I discussed in the previous table. So you will just use that table to find different yp's. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास r of x आता है, वो r of x आप देखेंगे क्या वो yc में मौजूद तो नहीं है। जिसका एग्जांपल यूँ होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास r of x जो है that is e power x, okay, so by this choice I'll taking what I will taking a e power x। लेकिन अगर मेरे पास जो yc है उसमें ऑलरेडी मैंने y1 y2 को फाइंड किया था, लेट्स सपोज, एंड दैट वाज e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x, राइट? इट कुड बी एनीथिंग। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने r ऑफ x को देख लिया यहाँ पे ना, या हमने yp को देख लिया है कि ये क्या है, ये ax e पावर x है। तो ये फॉरगेट अबाउट द कांस्टेंट, राइट? इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस e पावर x की बात कर रहे हैं। तो e पावर x अगर यहाँ पे मौजूद है तो फिर ये जो yp होगा ये सुटेबल नहीं है, ठीक है? इन दैट केस यू बी सिंपली मल्टीप्लाइंग इट विद व्हाट, विद x, should be taking ax e power x, ये आपका yp होगा। लेकिन अगेन आपने देखना है क्या ये यहाँ पे मौजूद तो नहीं है। Sometime we can have a solution like that, y is equal to c1 e power x plus c2 x e power x। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे भी मौजूद है। तो अगर ये चीज़ इधर मौजूद है फिर से, तो फिर आपने yp को लेना है a x स्क्वायर e पावर x, और सिर्फ यहाँ तक होता है इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर फिर आपने इसको भी चेक करना है क्या a x स्क्वायर e पावर x भी यहाँ पे मौजूद है या वो उधर yc में मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो फिर आप दोबारा उसके साथ x मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अनलेस आपके पास एक ऐसा yp आ जाए, एक ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए फॉर yp जो कि वहाँ पे मौजूद ना हो। अब चाहे वो एक्सपोनेंशियल में है, चाहे वो उसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक में है, या चाहे वो पॉलिनॉमियल्स में है, ठीक है? ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग विल बी डिस्कस इन अ व्हाइल। मैं इसको नोट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, वंस यू हैव सेलेक्टेड yp, ये कंडीशन अप्लाई करते हुए, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दोज आर्बिट्री कांस्टेंट, नॉट एग्जैक्टली आर्बिट्री कांस्टेंट, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स ए बी सी डी। उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें वो एक्सप्रेशन चाहिए, हमें वो वैल्यूज़ चाहिए फॉर दीज अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, जिसके लिए ये फंक्शन yp जो होता है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो उसके लिए अब इसलिए हमें yp तो गिवन होता है, yp डैश को हम फाइंड करेंगे और yp डबल डैश को फाइंड करेंगे, और ये फिर वैल्यूज़ जो है इक्वेशन गिवन जो इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन, होमोजीनियस में नहीं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में पुट करके दोनों साइड पे, अगर पॉलिनॉमियल है तो पॉलिनॉमियल के जो x स्क्वायर x और ये इनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन और कॉस की इक्वेट करने हैं। अगर एक्सपोनेंशियल है तो फिर आपने एक्सपोनेंशियल को इक्वेट करने हैं, कोएफिशिएंट दोनों साइड पे। और अगर प्रोडक्ट है जैसे कि x भी मौजूद है तो फिर आपने x e पावर x और e पावर x दोनों के कोएफिशिएंट्स को राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इक्वेट करने होते हैं, जहाँ से हमारे पास a b c d की वैल्यू आ जाते हैं, जितने भी इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। Okay, so note that the selected yp should not be the part of yc, otherwise multiply the selected function with x and so on, so proceed in similar way. Okay, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपके पास सपोज करें कोई फंक्शन इस तरह आ गया है जो कि ऑलरेडी yc में मौजूद है, तो फिर आपने उसको क्या करना है, उस yp के राइट साइड को x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और रीज़न क्या है, वाई डू वी डू दैट? इसका रीज़न ये है कि अगर हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें
इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। यानी अगर y1 और y2 जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो उनकी लीनियर कम्बिनेशन जो होगी वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सो फॉर जनरल सॉल्यूशन व्हाट डू वी नीड टू हैव? वी नीड टू हैव इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ई पावर एक्स और 2 ई पावर एक्स अगर हैं तो ये डिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके जी, सो दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग बाय एक्स, और इसका अपना वो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से हम प्रूव करते हैं कि हमें क्यों एक्स मल्टीप्लाई करना है या फिर हमने क्यों एक और एक्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स डू एन एग्जांपल. Example is given as y double dash plus 4y dash minus 2y that is equal to 2x square minus 3x plus 6. अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है इसका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, देयरफॉर yp विल बी व्हाट, दैट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो हमने टेबल में बात की थी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें पहले yc को फाइंड करना है। तो टू फाइंड yc विल बी कंसीडरिंग करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, दैट्स y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 2y, राइट हैंड साइड पे जो भी होगा उसको 0 के बराबर पुट कर दें। सो वी गेट y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, अब इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इट विल बिकम m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2, बिकॉज y डबल डैश इज रिप्लेस विद m स्क्वायर, y डैश वुड बी रिप्लेस विद m वेयर एज y इज रिप्लेस विद 1। ऐसा क्यों होता है? इसमें हम एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जिससे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब इसके जो रूट्स हैं दैट कैन बी फाउंड इजीली बाय यूजिंग कैलकुलेटर और यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √6 ध्यान में रख लें, हमारे पास ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, आयोटा इसमें नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि -2 प्लस माइनस आयोटा √6 होगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएंगे, लेकिन असल में ये क्या है, इसमें आयोटा मौजूद नहीं है, इसके रियल रूट्स हैं। तो एक -2 प्लस √6 हम लेंगे और एक -2 माइनस √6 हम लेंगे, तो सोल्यूशन जो इसका होगा कम्प्लीमेंट्री, ये हम क्या करते हैं, -2 प्लस √6 के साथ x मल्टीप्लाई करके e पे पावर में लेंगे, और दूसरे में -2 माइनस √6 के साथ x मल्टीप्लाई करके e के पावर में लेंगे। आई होप रिमेंबर दैट द जनरल सोल्यूशन व्हेन वी हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स m1 and m2 दैट वुड गिव यू y इज इक्वल टू c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x। ओके, तो यहाँ पर हमने उसी कंसेप्ट को यूज़ कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम yp को कंसीडर करेंगे तो yp विल बी टेकन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो yp जो होगा दैट विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स a b c। अब ये जो a b c है, हमारा एम यही है कि इनको फाइंड कर दें सच दैट ये yp गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, गिवन इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। तो एज आई सेड अर्लियर, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम yp जो गिवन है yp डैश फाइंड करते हैं और yp डबल डैश फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये वैल्यूज फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे गिवन इक्वेशन नंबर 1 में। तो अगर आप इसकी डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे तो वाई डेरिवेटिव क्या होगा इसका, यहाँ पे सिंपल पावर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़, yp की डेरिवेटिव, तो दैट विल बी 2ax प्लस b yp डबल डैश, दैट वुड बिकम डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन, सो वी गेट 2a। ध्यान में रख लें कि यहाँ पे y डैश yp डबल डैश का मतलब वही yp डैश और yp डबल डैश होगा, या अगर हमने yp डैश और yp डबल डैश को यूज़ किया तो इसका मतलब वही y होगा। दे आर इंटरचेंजेबल बिकॉज yp एंड yc आर द सोल्यूशन, इसका मतलब है कि ये दोनों y के वैल्यूज होते हैं। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड y डैश y डबल डैश in given equation, so you see that यहाँ पे क्या आ जाएगा, y डबल डैश पे जो वैल्यू है वो इसका आ जाएगा 2a, y डैश की जगह आ जाएगा 2ax प्लस b, 4 अपनी जगह पे मौजूद है, -2 और y की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि ये वाली वैल्यू हमने ली थी, एंड दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब दोनों साइड पे हमने क्या करना है, दिस वन वे, जो अगर आप स्टेप्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन दोनों वो 4 मल्टीप्लाई करें जैसे -2 मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर ना भी करें तब भी ठीक है, इफ़ यू आर क्लेवर इनफ के दोनों साइड पे आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। ओके जी, सो अगर आप देखें तो फर्स्ट हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर की। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर राइट साइड पे तो 2 है, इट्स क्लियर, वेयर इज व्हाट अबाउट द लेफ्ट साइड, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, नो, इधर भी एक्स स्क्वायर है, नो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो अरे -2a x स्क्वायर, तो दोनों साइड पे जब हम कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये जो -2a है दैट शुड बी सेम एज 2, सो वी आर टेकिंग -2a इज इक्वल टू 2, यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, ओके, तो इसी यहाँ पे ये -2a मल्टीप्लाई होगा, बाकी कोई और टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो ये बराबर हो जाएगा 2 के। वेयर इन केस ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, अगला स्टेप ये होगा,
यहाँ पे तो x नहीं है ऑब्वियसली, इधर x हमारे पास है तो एक कोफिशिएंट यहाँ से आ जाएगा जो कि 8ax, और दूसरा जो कोफिशिएंट है वो यहाँ से आ जाएगा -2bx। ओके, सो हम ये दोनों कोफिशिएंट लेंगे 8a -2b, दैट शुड बी सेम एज -3। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू -1 आया था। अब 8a -2b इज इक्वल टू -3, हमें b की वैल्यू चाहिए, a की जगह मैं पुट कर दूंगा -1, सो 8 इंटू -1 दैट इज -8, ये राइट साइड पे चला जाएगा तो -3 + 8 बन जाएगा 5, और फिर यहाँ से -2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। और फिर जब आपको x पावर 0 नज़र आता है, x पावर 0 का मतलब है भाई कांस्टेंट टर्म अपने लेना है। अब कांस्टेंट क्या होगा, 2a है, ओके सॉरी यहाँ पे 2a है, यहाँ पे फिर 4b आएगा, और यहाँ से -2c आएगा, और इस साइड पे 6 होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई टर्म मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो 0 के बराबर होगा। लेट्स सपोज अगर राइट साइड होता है 2x² - 3x, तो इसका मतलब है कि जो c है वाला पार्ट है, जो कांस्टेंट पार्ट है, वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है -1 है, b की वैल्यू मौजूद है -5/2 है, हम c यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो c की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, -9। आई होप इट्स क्लियर, बिकॉज इसी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास -2, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये -2 आ जाएगा, तो -10 आ जाएगा। सो वी आर हैविंग -12, और ये 6 है, तो -12 जब इधर आ जाएगा तो ये 18 बन जाएगा। सो वी आर हैविंग -2c दैट इज इक्वल टू 18, विच मीन्स c इज इक्वल टू -9। सो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -5/2, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन yp, ऊपर जब हमने yp लिया था, सो yp विल बिकम -x² -5x by 2x -9। अगर ये सारे वैल्यूज हम पुट करें यहाँ पर इस इफ यू सी द कर्सर, ax² + bx + c में a की जगह -1 सॉरी, b की जगह -5/2 और c की जगह -1। सो वी आर हैविंग पर्टिकुलर इंटीग्रल इज दिस वन। अब जनरल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, जिस तरह पिछले स्लाइड में डिस्कस कर दिया कि y इज इक्वल टू yc + yp। सो द सोल्यूशन वुड बिकम व्हाट, ये जो yc है इसके साथ हम ये वाला पार्ट भी ऐड कर देंगे, एंड दैट वुड गिव यू जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। If you want to verify this, simple put this equation in the given differential equation 1, and you will see the equation would be satisfied. Okay, there are some more examples as well with different obviously right hand sides, but I'm trying to solve some questions from exercise. Okay, and I'd call that simply practice questions, and I'm doing that. जहन में रख लें कि जो क्वेश्चंस है मैंने जिल की बुक से लिए हुए हैं, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय जिल, और इसका जो एक्सरसाइज 3.4 है, ये जो सीक्वेंस मैंने नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये उनके एग्जैक्टली नंबर्स नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे ये डिफरेंट है। जैसे क्वेश्चन 1 इज आल्सो क्वेश्चन 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.4। अगला जो क्वेश्चन मेरा आएगा वो शायद वहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन 2 ही मैं सीक्वेंस में दे रहा हूँ, वहाँ पे शायद वो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा। अच्छा, अब इसको हमने आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ऑब्वियसली पहले हम वाई सी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वाई सी के लिए वो क्या करना पड़ेगा, वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y, आई विल बी इक्वेटिंग दैट टू 0, क्योंकि वाई सी होमोजेनियस इक्वेशन की सोल्यूशन है। करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आई सिंपल राइट सी एच एंड देन आई विल सिट राइट equation, that means corresponding characteristic equation, it would become m² plus 3m plus 2 is equal to 0, विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हमारे पास आ जाते हैं, एक -1 और एक -2 आ जाएगा, एंड देन वाई सी वुड बिकम व्हाट, वाई सी वुड बी सिंपली c1 e पावर -x प्लस c2 e पावर -2x। राइट, अच्छा, अब इस केस में हमारे पास जो आर ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 6, जो कि कांस्टेंट है, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी हैव कांस्टेंट राइट हैंड साइड, इन दैट केस विल बी टेकिंग वाई पी दैट इज अ कांस्टेंट। ओके, और फिर इसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो हम इनके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। सो विल बी फाइंडिंग वाई डैश 0, वाई डबल डैश विल बी आल्सो 0। So putting these values in equation 1, if I call this equation number 1, so equation 1 I'll just write that 0 plus 0 plus 2a is equal to 6. अब यहाँ से 0 plus 0 से 0 आ जाएगा, into 2a is equal to 6, which means a is equal to 3. It's a very simple equation, and this is the
value of a. So yp will become what? Yp is equal to 3 because yp was taken as simple a. Okay, and therefore the complementary solution was found, particular integral was found, and we know that general solution is yc plus yp. So yc was c1 e power minus x plus c2 e power minus 2x, and then we have plus 3 is the solution of this differential equation. अच्छा, यहाँ पे बाज़ औक़ात हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन होते हैं या बाउंड्री कंडीशन होते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इनिशियल है तो उसमें हमें यूजुअली गिवन होता है वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू समथिंग एंड वाई डैश ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू समथिंग एज वेल। ठीक है, अगर बाउंड्री कंडीशन है तो हमें दिया होगा लेट्स सपोज वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1 एंड वाई ऑफ 3 इज़ इक्वल टू समथिंग 2 है, व्हाटएवर जो भी है। तो इन वैल्यूज को हम फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपल पुटिंग वाई, यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, दैट बेसिकली मीन्स वाई की वैल्यू 1 होगी जब एक्स जीरो के बराबर होगा। तो obviously you can find the values of c1 and c2. Okay, right, the next one is y double dash minus 8y dash plus 20y is equal to 100x square minus 26x e power x. अब यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड को देख लें तो उसमें पॉलिनॉमियल भी है और द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल एंड एक्सपोनेंशियल भी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो वही है कि हमने क्या करना है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेनी है, बल्कि वाई सी के लिए पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन को लेंगे। फॉर वाई सी वी कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशन 8y डैश प्लस 20y इज इक्वल टू 0, जिसके लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा CHE, that would be m square minus 8m plus 20 is equal to 0, and then its roots can be found easily by using calculator, or you can find these roots by using quadratic formula. So we can see m is equal to can we factorize this? The answer is no, we cannot do that. So I'll just take 8 plus minus under root 64 minus 80 divided by 2. So that would give you 8 plus minus under root 64 minus 80 is what? That is 16 divided by 2 minus 16, sorry. So the roots will be what? 8 plus minus iota 4, and then we have 4 plus minus 2 iota, right? So you may check the roots again. I'm not exactly sure because मैंने find कर दिए। तो we have 8 plus minus under root b square minus 4ac. A is 1, C is 20, so obviously 20 into 4 is 80, and 64, 64 minus 8 is minus 16, so it's 4 iota. So the roots are complex, therefore its complementary solution will be yc, that is equal to e power the real part x to c1 cos of imaginary part into x plus c2 sine of that imaginary part into 2x. ठीक है, अब यहाँ पर इमेजिनरी जो है वो 2 के बराबर है, रियल पार्ट जो है वो 4 के बराबर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है उसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल को। तो वाई पी के लिए अब देख सकते हैं यहाँ पर ये पाइनामिल भी है और साथ में एक्सपोनेंशियल इंटू मल्टीप्लाइड बाय पाइनामिल है। तो हाउ वुड आई टेक दिस वाई पी इन दिस केस? जब मैं बात करूँगा किसके, फर्स्ट 100 वाली एक्स स्क्वायर की, तो वहाँ पे मैं ले लूँगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और साथ में इसके लिए ले लेंगे प्लस ए एक्स ई पावर एक्स। अब आपने देखना है कि ये ए एक्स ई पावर एक्स इधर मौजूद है कि नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, या एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? Some of the derivatives are simple, so you see we can simply take as y dash I mean yp dash, so that is 2ax plus b plus sorry it should be d, right? a एक बार यूज़ हुआ दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, that is d, लेकिन यहाँ पे अपने अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। सो वी टेक x फिक्स डेरिवेटिव ऑफ e power x and then e power x free fixed and derivative of x is 1, so ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
and then we'll be taking its double derivative as well. So y double dash, it would be 2a plus d, and derivative of this is again applying product rule. So x e power x प्लस ई पावर x प्लस ई पावर x, ये इस e पावर x की दोबारा मैंने डेरिवेटिव ले लिया. So altogether, putting these values in equation 1, what would I have? अगर आपने इसको let's suppose हमने इसको equation 1 कहा हुआ है, sorry किधर गया मैं, okay, इसको अगर हम equation 1 कहेंगे तो we have just put the values in this equation 1. y double dash, I could write that simply 2a plus d x e power x plus 2 e power x, right? And then we have minus 8 into y dash, that is 2ax, sorry, that is 2ax plus b plus d x e power x plus e power x, and then we have plus 20 ax square plus bx plus c plus d x e power x, and this is equal to 100x square माइनस 26x e पावर x. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, एक yp1 कर दें, दूसरा yp2 कर दें, ये हो जाएगा. तो वी कैन डू दिस टुगेदर, जिस तरह मैंने अभी कर दिया, और इन दोनों को हम सेपरेटली भी कर सकते हैं. ओके. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे. पहले एक्स स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है फर्स्ट में, दूसरे में भी कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है. तो वी आर हैविंग 20a दैट इज इक्वल टू 100. इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 5. द वैल्यू ऑफ a इज फाउंड. फिर इसके बाद हम इक्वेट करेंगे x का कोफिशिएंट. गॉड सॉरी. अच्छा, अब इसमें जब हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो पहले टर्म में तो कोई नहीं है, दूसरे में एक टर्म हमारे पास आ रहा है, दैट इज 16a. ओके, वो टर्म आई होप यू सी दैट, वो यहाँ से आएगा, इधर से माइनस, ये 2 मौजूद है यहाँ पे, डोंट फॉरगेट दिस वन एज वेल. सो इट्स माइनस 16a, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20b इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट उसमें नहीं है तो 0 आ जाएगा हमारे पास ये. अच्छा, ये बात स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर ये तो x है, ये जो x e पावर x वाला आता है ना, ये वाला, नो, ये x नहीं है, ये बेसिकली फंक्शन पूरा है x e पावर x है. ठीक है. अच्छा, जब a की वैल्यू 5 है तो वी सी 20b दैट विल बिकम 80. अगर मैं यहाँ पे 5 को पुट करूँगा, एंड दैट वुड गिव मी b इज इक्वल टू 4. ओके, सो b फाइंड हो गया. और इसके बाद फिर हम जाएंगे x पावर 0 की तरफ. सो द कोफिशिएंट x पावर 0 दैट वुड बी व्हाट, फर्स्ट में 2a आ जाएगा, सेकेंड टर्म से हमारे पास आ जाएगा माइनस 8b, और फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस 20c, वेयर इज देयर इज नो राइट हैंड साइड, कांस्टेंट कोई नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो वो 0 हो जाएगा. सो 2a दैट विल बिकम 10 minus 8b, it's 20b should be, okay, yeah, minus 8b, b is this one, so minus 32 and plus 20c, that is equal to 0, which basically gives you the value of c. आ जाएगा हमारे पास minus 22. so इसका मतलब यह है कि c is equal to 22 by 20, or maybe 11 by 10 if I have done correctly. It is 2a, it is coming from the first term यहाँ से, so we are having 2a, फिर इसके बाद सेकेंड में minus 8b, that's okay, and then we have plus 20c, and राइट साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं तो 0 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी. अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे वो e पावर x की अगर हम बात कर दें,
Okay, so the coefficient of e power x on both sides, कोफिशिएंट ऑफ ई पावर एक्स, तो फर्स्ट टर्म अगर आप देखें तो इसमें ई पावर एक्स का कोफिशिएंट आता है डी, सेकंड में क्या आ जाएगा, उसमें हमारे पास आता है 2d, दूसरे में भी डी आता है। ओके, थिंक समथिंग इज रॉन्ग, इट्स 2 ई पावर एक्स, या दिस वन इज 2, जो पहले टर्म में आ रहा है ना हमारे पास, उसमें 2a, इट्स यार एम आई यार, ओके, सो there is some type, yeah, this is 2. Okay, so this will become 2d in the first one, फिर जब हम सेकंड में लेंगे तो -8d, फिर जब हम आएंगे लास्ट में तो वहाँ पे आ जाएगा, उसमें कोई ई पावर एक्स नहीं है, राइट साइड पे कोई नहीं है, so that basically means d is equal to 0. फिर इसके बाद हम इक्वेट करें कोफिशिएंट्स ऑफ x e पावर x, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x e पावर x, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास आ रहा है d, सेकेंड टर्म में भी आ रहा है प्लस d, ओके, एंड देन वी हैव इन द लास्ट टर्म दैट इज d as well, okay, am I right? It will be mine, sorry, something is wrong, this is d, the first one is okay, the next one is -8d, it is -8d, you see, क्योंकि इसमें -8 मल्टीप्लाई हो रहा है, d के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर उस केस में कोई इशू नहीं है, वहाँ पे हम 0 आ रहा है हमारे पास, और थर्ड में फिर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज +20d इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, राइट साइड पे 26 के ये बराबर आता है, सो व्हाट डू वी हैव, d -8d, ओके, +20, so 12 13, so that is we are getting 13d is equal to 26, that means d is equal to 2, okay. असल में जो फर्स्ट टर्म था उसमें वो टर्म जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, सो दिस स्टेप यू शुड चेक इट अगेन, इट शुड नॉट बी 0, जहन में रख लें, ये टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी कोफिशिएंट में मैच कर गया हूँ, अगर आप देखिए इसमें तो वी आर टॉकिंग अबाउट इज 2d, द सेकेंड वन इज e power x, they should cancel each other, so तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा d की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, बिकॉज हम सिंपली x e पावर x कोफिशिएंट को ले रहे हैं दोनों साइड पे। अब ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं 5, 4 और -11/10, ये c की वैल्यू है, और यहाँ पे d की वैल्यू 2 आ गई है, सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन जो हमारे ने लिया हुआ था yp में, ठीक है, और फिर yc और yp को कंबाइन करके वी विल बी गेटिंग द सोल्यूशन ऑफ द, जो कि जनरल सोल्यूशन होगा हमारे पास इस इक्वेशन का। So I hope you could put simple the values of A, B, C and D. Okay जी, next जो example है, question है, that is obviously containing trigonometric function which is a cos 2x. So first we would find the complementary solution. So for complementary solution yc, y double dash minus 4y dash 3y is equal to 0. Characteristic equation will be, that will be
4m square minus 4m minus 3 is equal to 0, which give you simply that is 4m square minus minus 6m plus 2m minus 3 is equal to 0. यहाँ से 2m को कॉमन निकाल देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2m माइनस 3 प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे तो 2m माइनस 3 is equal to 0. And then we simply solve that for m to get एक रूट हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2, दूसरा रूट हमारे पास आ जाएगा इसका 3/2. So solution y is equal to c1 e power minus 1/2x plus c2 e power 3/2x. In case if you are having you see in this case now we are having cos 2x on the right side, so we'll be taking yp as cos 2x, so it will be a cos 2x प्लस बी साइन 2x, चाहे एक हो चाहे दोनों हो तब भी आपने इसको करना है. एंड डजंट मैटर आप इसको पहले लेते हैं, cos को पहले लेंगे, साइन को बाद में लेंगे, या पहले साइन को लेते फिर बाद में cos को लेते हैं, डजंट मैटर. So yp dash that would give you simply minus 2a sine 2x plus 2b cos 2x, whereas yp double dash that would give you minus 4a cos 2x minus 4b, and then we have sine 2x. Now putting these values of yp, yp dash, yp double dash in given equation, in the original equation, so that would give you, put in the value y double dash, so 4 into y double dash, which is minus 4a cos 2x minus 4b sine 2x. You should be very careful about the coefficients because otherwise you will be finding yourself in trouble. That is 2a sine 2x with minus sign plus 2b cos 2x minus 3, and then we have a cos 2x plus b sin 2x, and that is equal to cos 2x. अब हम दोनों साइड पे cos और sin के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे. अगर आप इस तरह मतलब मिस्टेक कर रहे हैं, जिस तरह पिछले उसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दें. अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं. तो अगर हम दोनों साइड पे cos 2x के कोफिशिएंट को कंबाइन करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक हमारे पास आ जाएगा ये वाला, तो वी आर हैविंग माइनस 16a, इधर से आ जाएगा माइनस 8b, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3a, and that is equal to 1, which might be simplified as minus 19a minus 8b is equal to 1. Okay, and similarly for sin 2x, इधर से हमारे पास आ जाएगा 16b, सेकेंड से हमारे पास आ जाएगा प्लस 8a, और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3b, लेकिन राइट साइड पे कुछ नहीं तो 0 के बराबर आ जाएगा. एंड देन इफ यू सिंप्लीफाई दिस इट विल गिव यू माइनस 18b माइनस 16b, तो आ जाएगा माइनस 19b प्लस 8a इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम a या b की वैल्यू निकाल के उधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में. ओके, so we may write this one as a is equal to 19 by 8b is equal to 19 by 8b, और फिर ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू को फिर हम उधर पुट करेंगे. इक्वेशन 1 में हम a की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, दैट वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ b देन.
Equation number 1 gives, simply put, minus 19 into 19 by 8 b minus 8 b is equal to 1. That would simplify to get you the value. अच्छा, अब ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी हो सकता है कि 19b प्लस 8a इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास है 19a माइनस 8b इज इक्वल टू 1. यू कैन सिंपली यूज कैलकुलेटर टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज वेल. तो हमारे पास यहाँ से जो b की वैल्यू होगी वो b की वैल्यू पर यहाँ पे हम पुट कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ a. ओके, और फिर ये दोनों a और b की वैल्यूज ऊपर yp में पुट करके यू विल बी गेटिंग सोल्यूशन ऑफ द particular integral, and then combining particular integral and complementary solution to get the general solution. Okay, the next one is simple exponential function. लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है. मेरे ख्याल में बात स्टूडेंट से पूछा था कि इसमें कुछ सुपर पोजिशन वाले प्रॉब्लम है और कुछ वो उसमें ग्लिच वाला प्रॉब्लम है. तो ग्लिच असल में यह है कि वही जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपके पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम फंक्शन लेते हैं ना, अगर वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री में मौजूद है तो फिर क्या करेंगे. ठीक है ना, दैट बेसिकली द ग्लिच इन द सोल्यूशन. ओके, सो इन दिस केस अगर आप देखें, इससे पहले हम वाई सी को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने वाई डबल डैश माइनस 16 वाई को 0 के बराबर लेना है. ओके, एंड देन वी विल बी हैविंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच विल गिव यू एम स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, जो हमें देगा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. नो सॉरी, इसमें वो चीज़ नहीं है. इट शुड हैव बीन, इफ इट वाज, लेट्स सपोज मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ ई पावर 4x. It's not e power 2x. Let me take that as e power 4x, just for sake of understanding the concept. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा. Okay, and then we have a solution yc, that is c1 e power 4x plus c2 e power minus 4x. Okay, अच्छा, अब yp फाइंड करने के लिए अगर आप राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करेंगे तो r of x in this case is what, let's we have assumed that it is e power 4x. Okay, तो अब देखें इसमें yp में क्या लूँगा. आई विल बी टेकिंग yp बिकॉज राइट हैंड साइड इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो आई विल बी सिंपल टेकिंग e पावर a टाइम्स a पावर 4x. लेकिन अगर आप e पावर 4x को हम एस्यूम करें तो वो यहाँ पे भी मौजूद है ऑलरेडी, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको yp की तरह उसमें नहीं लूँगा. ओके, सो आई विल टेकिंग व्हाट, आई थिंक जस्ट गेट रीड ऑफ समथिंग. Okay, so yc was found is, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, c1 e power 4x plus c2 e power minus 4x. Okay, and now I'll be taking yp as a x e power 4x rather than a e power 4x. That's the glitch in the solution. अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, हम yp डैश को फाइंड करेंगे. तो yp डैश दैट इज सिंपल डेरिवेटिव आप लेंगे इसका, तो ये तो कांस्टेंट है. अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, सो आ जाएगा 4. ओके, व्हाट आई एम डूइंग, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें. yp that is a x e power 4x. तो जब मैं इसके yp की डेरिवेटिव लूँगा तो yp डैश इट विल बी a, और फिर आ जाता है 4x e पावर 4x प्लस e पावर 4x, whereas yp double dash will be again a, that becomes 16x e power 4x plus e power 4x. Applying product rule on this again, and again it would be something like that. और यहाँ से क्या जाएगा, that become 4 e power 4x. So when I simplify this, we get a, this is what, this is 4 here and 4 here as well. So you'll be getting a into 16x e power 4x plus 4 e power 4x is again this one, because we are multiplying this with this 4. So 4 e power 4x plus 4 e power 4x, which might be simplified as a. ज़रा इसको कंफर्म करें कि मैंने कोफिशिएंट सही लिए हैं कि नहीं, क्योंकि बाद में फिर मसला आएगा.
उसमें हमें चाहिए कि ई पावर एक्स 4x जो है में से ये वाला टर्म जो है दैट मस्ट कैंसिल ईच अदर. Now putting all these values in equation 1 to get the solution, so y double dash को replace करना है हमने this equation. So equation 1 gives y double dash, so a into 16, बल्कि in fact 16a x e power 4x plus 8a e power 4x. Oh, sorry, I just made a mistake. What I'm doing, I changed the slide. It should have been here. In fact, yeah, I was here. Okay, so we already found the values, so I'll just get rid of these then. Okay. So putting these values, that value was found is, if you go back to that equation number 5, that was 16a x. I do this. इसको 16a x e power 4x. So I go back to this one. या इसको हम दोबारा फाइंड कर देते हैं यहाँ पे. ये y p आ गया हमारे पास, साथ में हम x लेंगे. ओके, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, y p डैश, that will be a e power 4x plus x into a into 4 e power 4x, applying product rule. Okay, and then derivative दोबारा इसका लेंगे तो y p डैश जो हो, डबल डैश होगा, वो क्या बन जाएगा, ज़रा ज़रा में देखने को, इसका आ जाएगा 4 a e पावर 4x प्लस 4a को बाहर छोड़ दें, x को फिक्स करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा x e पावर 4x plus e power 4x. So we'll be getting 4a e power 4x plus 16ax e power 4x plus 4a e power 4x, which will give you 8a e power 4x, 16a e power 4x into x. Now putting these values in equation 1, if you have called this equation number 1, so equation 1 gives y double dash, which is 8a e power 4x plus 16ax e power 4x minus 16x e power 4x into a is equal to 2 e power minus 4x plus 4x. अच्छा, अभी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कोफिशिएंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करें इस केस में, वो यही है कि ये दो टर्म्स लाजमन कैंसिल होनी चाहिए. अगर ये कैंसिल ना हुए, इसका मतलब यह है कि यू हैव मेड अ मिस्टेक. सो 8a e power 4x is equal to 2 e power 4x. From here you will be having 8a is equal to 2, which gives you a is equal to 1 by 4. And therefore the particular integral is what? Yp, that will be 1 by 4x e power 4x. Right, so that's a particular integral, and then the solution will be what? It will become c1 e power 4x plus c2 e power minus 4x plus obviously 1 by 4x e power x. Okay, just get rid of this. So the next question is, I don't think there will be some issue in it. In this case, for yc, I'll be taking simply m square minus 2m plus 5 is equal to 0, and then I'll do what? The roots will be 2 plus minus for m, under root, that is 4 minus 20 by 2, which would give you, again it's a complex roots आ जाएंगे इसमें, तो 2 plus minus under root 4 iota divided by 2, या हमारे पास आ जाएगा 1 plus minus 2 iota. तो complex roots हैं, so complementary solution will be y is equal to e power the real part into x, c1 imaginary part sign के साथ आएगा, cos 2x plus c2
sine 2x. Okay, and now you see in this case r of x, that is 2 e power 2x, and there is no e power 2x in the complementary solution, so that's okay. तो हम क्या लेंगे, yp is equal to a e power 2x. The first order derivative will become what? Y dash, it will be simply 2a e power 2x. Y double dash will be 4a e power 2x. And then putting these values in equation 1, if we call this equation number 1, so equation 1 gives y double dash, that's 2a e power 2x, 2 into 4a e power 2x, sorry, okay, y double dash is 4a e power x, and y dash is this one, so that also become 4a, and then we have plus 5 a e power 2x is equal to 2 e power 2x. Okay, so it's y double dash, so 4a e power 2x, this becomes minus 2 into 2, that becomes 4, so these two will cancel each other, and then we have 5a e power 2x is equal to 2 e power 2x. that means a is equal to 2 by 5 अगर हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे. So in this case yp would become what? That would become 2 by 5 e power 2x. That's a straightforward solution. Okay, in this case हमारे पास जो आता है, for पहले complementary solution find करेंगे. So for yc I'll be simply taking m square plus 2m. अच्छा, इसमें बेसिकली मैंने शो ये करना है कि क्यों मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ. यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, साइन है और कॉस है, लेकिन दोनों के जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट है. ओके, यहाँ पे x और यहाँ पे 2x है. So I'll be taking m square plus 2m plus 1 is equal to 0, which might give you m plus 1 whole square is equal to 0, implies we are having equal roots, minus 1 minus 1. So yc would become what? That would become c1 e plus c2x into as a whole e power minus x. That's the complementary solution. अब देखिए यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम यूज करेंगे yp को. So yp would become a cos x plus b sin x plus c cos 2x plus d sin 2x. राइट, अब इसमें वही है कि इस तरह नहीं करेंगे भाई ये साइन और कॉस है तो हम एक क्यों नहीं ले रहे हैं. एक साइन एक्स है, दूसरा कॉस 2x है, इसलिए हम एक नहीं ले सकते, हमें दोनों के लिए अलग अलग लेना होगा. सो वाई पी डैश विल बी माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको आप वाई पी वन कह दें, इसको वाई पी टू कह दें, जैसे मैंने पहले कहा था. माइनस 2 सी साइन 2x प्लस 2d cos 2x, and then we have yp double dash minus a cos x minus b sin x minus 4c cos 2x minus 4d sin 2x. Now putting all these values in equation 1, okay, we get y double dash, that is minus a cos x minus b sin x minus 4c cos 2x minus 4d sin 2x. Then y dash is what? That is minus a sin x plus b cos x minus 2c sin 2x, and then we have plus 2d cos 2x. राइट, और इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग 2y, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा. और इसके बाद फिर प्लस y, वेयर y इज बीन टेकन एज a sin x, a cos x plus b sin x plus c cos x 2x, c cos 2x
plus d sine 2x is equal to sine x plus 3 cos 2x। अब इसमें आपने तीन मतलब साइन के लिए और कॉस के लिए अलग अलग करने हैं। पहले आप लेंगे कॉस एक्स के कोफिशिएंट्स को दोनों साइड पे, फिर आप लेंगे साइन एक्स के कोफिशिएंट को, फिर इसके बाद आप लेंगे साइन कॉस 2x के लिए, फिर आप लेंगे साइन 2x के लिए। ओके, पहले कॉस एक्स के लिए फिर साइन एक्स के लिए। अब अगर हम देखें कॉस एक्स के कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, माइनस ए, राइट, माइनस टू प्लस 2b एंड देन वी हैव प्लस ए। लेकिन राइट साइड पे कॉस नहीं है तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है b की वैल्यू ज़ीरो हो गई बिकॉज a और a कैंसिल हो रहे हैं, तो b इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर साइन के लिए क्या करना है, साइन के लिए पहले लेते हैं माइनस बी जो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, फिर इसके बाद आ रहा है माइनस 2a और फिर आ रहा है हमारे पास प्लस b इज इक्वल टू, राइट साइड पे साइन का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास b जो है कैंसिल भी हो रहे हैं और b हमारे पास ज़ीरो भी है, तो आपके पास a की जो वैल्यू है वो सिंपली -1/2 आ जाएगी और b ज़ीरो है। द सेम थिंग फॉर सेकंड इक्वेशन इज वेल। ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, c और d की वैल्यूज आ जाएंगे। Right, so you just maybe check some more questions in exercise 3.4 of ZIL book, or you can check some questions from Arabic Basic book as well. And if you have any question, you can simply ask me, or you can simply post a message or in the message box. Okay, so thank you very much, and I hope you will subscribe the channel just to get notification for the next video. Thank you.